Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, everyone. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. Okay, who is going to tell me that what story we have covered in the last class? Hud alayhi salam. Very good. Now, who will tell that which kind of punishment Allah subhanahu wa ta'ala sent over the people of Ad, that is the people of Prophet Hud alayhi salam? Karam, you can speak. Wind. Very good. It was strong and very fast kind of wind. Thank you for your answer. You're welcome. And now I want to know that was this went only for some time or it was continuing for many days? And for how many days? Iman, you can tell? It was sent for 7 nights and 8 days. Yes, very good. It was sent for 7 nights and 8 days. So it was such a long punishment and everything destroyed. May Allah subhanahu wa ta'ala save us from punishments. Ameen. So let us move to our next story, inshallah. And today we will listen the story of Prophet Salih alayhi salam. And he was sent after Prophet Hud alayhi salam. Prophet Salih alayhi salam was from this lineage that he previously Prophet Nuh alayhi salam, and then his son Sam, and then Iram, and then his son Athir. After that, Thamud, okay, Thamud, and then after like 5-6 generations, then Prophet Salih alayhi salam came. Okay, so there are like 5-6 generations in between Thamud or Salih. Thamud is the grandparent of Prophet Salih alayhi salam. The Qawm on which Prophet Salih alayhi salam was sent for was named according to the name of that grandfather. Okay, so their people were named Qawm Thamud or people of Thamud. And Salih alayhi salam was from an Arab tribe named Thamud. And I told you that this name of the tribe is based on the name of their grandfather. And they used to live in a place named Al-Hijr. And that place is between Hijaz and Tabuk. And I'm going to show you in the map. I explained you 4 circles, the red, green, pink, and the orange one. But today we are talking about this yellow part. This yellow circle, you can say that it is Al-Hijr. You can see Tabuk here. Here it is Tabuk, okay? And this is Medina and this is Makkah. And we say Medina and Makkah together as Hijaz. So it is between Hijaz and Tabuk, okay? This Al-Hijr. So they were over this. And if we look, we have a close look on this Al-Hijr, then you can see that it is kind of a mountainy area. You can see that ना कि ये सब माउंटेन वाला एरिया था, ठीक है? ये सारा ब्राउन किस्म के माउंटेन्स हैं इधर. And now we will know that how kind of people they were. Qawm Samud or people of Samud. They were after Ad, that is they were after people of Ad. Qawm Ad जो कि Hud alayhi salam की कौम थी, ठीक है? उसके बाद जी आए. And they were hard working craftsmen as well. ओके वो बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बना लेते थे, ठीक है? उनको ये फन था, उनके अंदर ये स्किल थी, महारत थी इसमें. एंड दे हैड फर्टाइल लैंड्स एंड अबंडेंट क्रॉप्स. इसका मतलब ये है कि उनकी जो ज़मीन थी वो बहुत ज़रखेज़ थी और उस पर बहुत अच्छे पौधे ग्रो करते थे और उस पर बहुत अच्छी क्रॉप फील्ड्स थी, ठीक है? बहुत अच्छी अच्छी उसकी प्रोडक्शन होती थी. जो भी उसका फ्रूट होता था या गंदम या आप जो भी समझ लें, जो भी फ्रूट होता था उसकी बहुत अच्छी तरह उसकी पैदावार थी. एंड सो जाहिर है ये चीज़ें आपको हेल्प करती है ना एक सोसाइटी में अच्छी तरह रहने के लिए, ठीक है? और बिल्डिंग्स भी बड़ी अच्छी बनाते थे. तो दे हैड अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, सो दे गॉट materialistic with increase in wealth. As they has the fertile lands and abundant crops and beautiful houses, so they were growing rich and wealthy. And फाइनली दे गॉट मटीरियलिस्टिक. अब मटीरियलिस्टिक क्या होता है? ऐसा कि मतलब उनकी सोच सिर्फ ना चीजों की तक महदूद रह गई
कि हमने कैसे तरक्की करनी है, हमने कैसे दुनिया के अंदर कैसे जो है ना आगे प्रोग्रेस करना है, हम अपनी लैंड्स को कैसे मज़ीद फर्टाइल करें, हम क्रॉप्स को कैसे जो है फर्दर अच्छा ग्रो करें, ठीक है, ताकि हमारी वेल्थ जो है वो ज़्यादा, हम हाउसेस को कैसे मज़ीद अच्छा बनाएं. बट दे वर फॉरगेटिंग अबाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला. Okay, so there are two approaches, and you can have the blessings, but at the same time you can remember Allah subhanahu wa ta'ala. आप अल्लाह ताला से नेमतें ले सकते हैं, लेकिन साथ साथ अल्लाह को याद भी कर सकते हैं. लेकिन अगर आप भूल जाते हैं तो here is the problem. Okay, और फिर क्या हुआ, they had lavish buildings in plains. जो मैदानी इलाके थे ना, जो प्लेन इलाका होता है जिसमें माउंटेन नहीं होता, उसके ऊपर भी बड़ी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स थी. और इसी तरह जो हिली एरिया होता था, माउंटेनी एरिया होता था, उसके ऊपर वो पता क्या करते थे, वो उसके अंदर हाउसेस ऐसे बनाते थे कि बकायदा उसको कार्व करके बनाते थे. ठीक है, उसको कार्व करते थे, वो हाउसेस बनाते थे. एंड ग्रेजुअली दे आल्सो स्टार्टेड आइडल्स वर्शिपिंग. ठीक है, ये भी उन्होंने एक गलत काम मजीद शुरू कर दिया, क्या कि अल्लाह को भूलने भी लगे. And they started idols worshipping. Now we will know the conversation between Prophet Salih alayhi salam and his people. This was the message of Prophet Salih alayhi salam. What he said? He said same as other prophets used to say, that worship Allah alone. Worship only one Allah. That is, इसका क्या मतलब होता है, एक अल्लाह की इबादत करो, मतलब ये है कि अल्लाह की इबादत तो करो ही करो, लेकिन साथ साथ किसी और की इबादत ना करो और उसके साथ पार्टनर्स एसोसिएट ना करो. ठीक है, एंड देन फियर अल्लाह, अल्लाह ताला से डर के रहो, कॉन्शियस रहो अल्लाह ताला के बारे में. ठीक है, एंड देन ओबे मी, मेरी बात मानो, जो मैं कहता हूँ वो करते जाओ. आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम योर रब. अब जो जो मिस्टेक्स आपसे होती जा रही हैं उस पे क्या करना है, आपने अल्लाह ताला से माफी मांगनी है. ठीक है, एंड टर्न बैक टुवर्ड्स अल्लाह. और अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर अल्लाह ताला की तरफ वापस लौट आना है. इफ यू विल डू दैट, ही सेड to his people, if you will do that, then Allah subhanahu wa ta'ala will accept your prayers, because he is all responsive. I mean, he responds when we call him. तो आप जब ऐसे करोगे तो वो आपकी दुआएं सुनेंगे, अल्लाह ताला आपकी दुआएं सुनेंगे. Then what disbeliever said? O Saleh, we had many hopes with you. हमें आपसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, हम आपसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते थे कि आप हमारे इतने अच्छे कौम के बंदे हो और आप तो हमारा कोई नाम रोशन करोगे. ठीक है, और हमारे काम को आगे लेके चलोगे. We had many hopes with you. Do you stop us from what our forefathers used to worship? आप हमें उससे स्टॉप करते कि हमारे जो ग्रैंडफादर्स जिसको वर्शिप करते थे, तो आपका दिल है कि हम उनके लाइफस्टाइल को ही छोड़ दें, हम उनकी इबादत ही ना करें जिनकी वो करते थे. ठीक है, सो indeed we are in severe doubt about what you invite us. और सच्ची बात तो ये है कि हमें तो बहुत ज्यादा शक है, जो आप बात करते हैं हमें उसके ऊपर कोई यकीन नहीं है कि वो बिल्कुल सही है कि नहीं, हमें शक है, हम डाउट में हैं. ठीक है, then Prophet Salih alayhi salam said, "O my people, I have clear evidence and mercy from my Rabb." कि मैं तो अल्लाह ताला से क्लियर, अल्लाह ताला की तरफ से क्लियर मर्सी है और एविडेंस है कि मैं अल्लाह का प्रॉफिट हूँ, मैं सच्ची सच्ची बात बता रहा हूँ आपको. And who will protect me if I disobey him? वो कहते थे ना हमें डाउट है कि आप सच भी कह रहे हैं कि नहीं, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे क्या जरूरत है गलत बात करने की, मैं तो खुद अल्लाह से डरता हूँ कि अगर मैं गलत बात करूंगा, गलत मैसेज कन्वे करूंगा, तो मुझे तो खुद अल्लाह ताला से डर लगता है. सो हु विल प्रोटेक्ट मी इफ आई डिसोबे अल्लाह सुब्हानहू व तआला? Then Salih alayhi salam said that I don't ask any payment in return, or I don't ask any reward from you people. मैं जो आपको अच्छे अच्छे की तरफ बुला रहा हूँ, जो मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ, तो उस वो क्यों कि इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मैं तो अपना इसका रिवॉर्ड अल्लाह ताला से चाहता हूँ. ठीक है, जो कि तमाम जहानों का रब है, तमाम जहानों को प्रोवाइड करने वाला है, मैं तो उससे एक्सपेक्टेशंस लगाता हूँ, आपसे तो मैं कुछ भी नहीं मांग रहा, तो फिर क्यों आप इतना हेसिटेट करें सही बात मानने के लिए. He also said that you have so many blessings. वो ना लोगों को तरह तरह से ना अल्लाह ताला की तरफ इनवाइट कर रहे हैं. ठीक है, कभी उनको डरा के, कभी इस तरह कि अल्लाह की तरफ लौट और फिर अल्लाह ताला आपको फेवर्स देंगे, और कभी इस तरह भी कि अल्लाह ताला ने आपको ऑलरेडी इतनी ज्यादा फेवर्स दी हुई हैं. You have gardens,
and you have springs, चश्मे हैं पानी के, and you have crop fields, date palm trees, and सिर्फ खाली खाली date palm trees नहीं है, they are with soft ripened fruit, उसके ऊपर जो fruit है, जो खजूर है, वो क्या है, वो बड़ी पकी हुई है, बिल्कुल खाने के लिए ready है, ठीक है। तो इतनी ज्यादा फेवर्स हैं आपके पास अल्लाह की, तो और आपको ये लगता है कि आप इन फेवर्स में हमेशा हमेशा रहते रहोगे और हमेशा हमेशा एंजॉय करते रहोगे। अल्लाह ताला जब एक चीज बार बार देते रहते हैं ना, हम समझने लगते हैं कि बस ये हमारा हक हो गया है ना, और ये ऐसे ही हमारे पास रहेगा। सो इसी तरह उन्होंने कहा कि विल यू बी लेफ्ट पीसफुली इन ऑल दीज ब्लेसिंग्स ऑलवेज, कि हमेशा आप मजा करते रहोगे, आपको लगता है कि इन्हीं ब्लेसिंग्स के अंदर। He further said that why you do these unnecessary kind of things, कि इतना गैर जरूरी काम आप क्यों करते हैं, अपना टाइम इन गैर जरूरी चीजों पे क्यों लगाते हैं। You carve the houses of mountains skillfully, ठीक है, पीछे पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा ना कि वो माउंटेन है और माउंटेन के अंदर से एक होता है ना, माउंटेन है और उसके ऊपर आप एक घर बना लेते हैं, दैट इज ओके। लेकिन वो क्या करते थे, माउंटेन को कार्व कर करके उसके अंदर से हाउसेस अंदर वो बना के लेके जाते थे, ठीक है। तो इसमें तो बहुत एनर्जी भी लगती है और टाइम भी बहुत लगता है, ठीक है, मनी भी लग सकता है। एंड जो कार्व द हाउसेस ऑफ माउंटेन स्किलफुली, सो फियर अल्लाह, ओबे मी एंड डोंट ओबे ट्रांसग्रेसर्स, कि उन लोगों को फॉलो नहीं करें जो कि लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं, जो अल्लाह की बातें नहीं मानते हैं, ठीक है, हदूद तोड़ देते हैं। उन लोगों को की बात ना सुने आप, और उन लोगों की बात ना सुने आप जो कि फसाद करते हैं लैंड पे, ठीक है। तो मैं जो आपको एग्जैक्ट बातें बता रहा हूँ और वैसे वैसे करते जाएं। तो उन्होंने पता है क्या कहा आगे से, डिसबिलीवर्स ने, उन्होंने कहा इट सीम्स यू आर अफेक्टेड बाय मैजिक, ऐसे लगता है ना आपके ऊपर जादू का असर हो गया है, ठीक है, आप अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, ठीक, और तो कोई ऐसी बात नहीं करता, और लगता है आपके ऊपर जादू हो गया। एंड यू आर ह्यूमन लाइक अस, हमारी तरह के आप ह्यूमन है, क्या ऐसा स्पेशल है कि हम आपकी बात मान लें। सो ब्रिंग अ साइन इफ यू आर ट्रूथफुल, ठीक है। अब वो इतने एरोगेंट हो रहे हैं कि उनकी अपनी बात इतनी सही लग रही है कि वो कहते हैं अच्छा ऐसे है तो फिर कोई अल्लाह ताला से ना कहो, कोई निशानी दिखाएं हमें कि जिससे हमें पता चल जाए आप अल्लाह के प्रॉफिट भी हो और सही कह रहे हो सारा कुछ ऐसे। और निशानी वो पता है क्या मांगते हैं, आम काम तो हम सब कर लेते हैं, एक फ्रूट तोड़ लेते हैं, खाना खा लेते हैं, खाना बना लेते हैं, वो पता है क्या मांगते होते थे निशानी के तौर पे, कि समथिंग स्पेशल जो कोई आम ह्यूमन ना कर सके, ठीक है। सो दे सेड ब्रिंग्स अ शी कैमल आउट ऑफ दिस माउंटेन, इस माउंटेन के अंदर से ना एक शी कैमल निकल आए, ठीक है, तो फिर हम तुम्हें मानेंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, कैमल आता है, फिर बेबी होता है, फिर बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन उनका इस माउंटेन के अंदर से एक बड़ी सी शी कैमल निकला है, तो हम तुम्हें मानेंगे। एंड देन Prophet Saleh alayhi salam did dua to Allah subhanahu wa ta'ala, and finally Allah subhanahu wa ta'ala ने दुआ सुन ली, और अल्लाह ताला ने उस चट्टान के अंदर से, उस माउंटेन के अंदर से कैमल, एक शी कैमल को बाहर निकाल दिया, ठीक है। एंड इट केम इन फ्रंट ऑफ देम, और उन्होंने उसको देखा और हैरान रह गए कि वाकई ये तो शी कैमल है, और वाकई तो बहुत ह्यूज सी है, और ये तो सच हो गया है, ठीक है, और वो हैरान हो गए। और फिर सौले अलैहिस्सलाम ने उनको बताया, हादिही नाक़तुल्लाह, ये है अल्लाह ताला की शी कैमल, ठीक है, हादिही नाक़तुल्लाह एंड इट इज अ साइन फॉर यू, ये आप लोगों के लिए एक वाज़े वाज़े निशानी है कि आप अब बिलीव करो, ठीक है, आप देख लो आपने जो मांगा, मैंने अल्लाह से दुआ की और इट हैपेंड, तो अब आप इस पे बिलीव, अब आप बिलीव करो कि जो अल्लाह है वो एक है, अल्लाह की वर्शिप करो और बाकी अपने गलत काम छोड़ दो। एंड सो लीव हर टू ग्रेस फ्रीली इन द लैंड, एंड फिर क्या करो, इसको ना छोड़ दो ऐसे फ्रीली कि ये घास अपना खाती रहे, चरती रहे इधर से उधर, ठीक है, इसको तंग नहीं करना, ये अपना करती रहे अपना जो भी एक्टिविटी है, ठीक है। एंड उन्होंने ना फिर भी बिलीव नहीं किया, ठीक। देन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड डोंट हार्म हर लेस्ट पनिशमेंट विल कैच यू सून, और इसको हार्म नहीं करना, ये अल्लाह ताला की ऊँटनी है, ठीक है, और इसको आप लोगों ने बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाना। पर पता है क्या है, वो उनके लिए एक टेस्ट भी बन गई, वो जो कैमल थी ना, शी कैमल, what she used to do, she used to drink a lot of water from their well, वो उनके कुएं से ना ज्यादा सारा पानी पी जाती थी, उसकी वाटर डिमांड बड़ी हाई थी ना, तो वो ज्यादा पानी पी जाती थी। तो क्या हुआ कि वो आए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि सलाम के पास, ठीक है, जो कौम समूद थी, वो आए एंड दे सेड दैट
this is the problem, that this she camel drinks a lot of water. Okay, so then Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam found this solution, that okay, we will assign the turns. You will drink water turn by turn. One day this she camel will drink all the water, and the second day you all people will collect the water from the well and you will use it. Okay, सो इस तरह उनकी बारियां लगी, एक दिन शी कैमल पीती थी और एक दिन ये, ठीक है। लेकिन फिर भी उनको इस बात से इतराज ही रहा, वो इस पे हैप्पी नहीं रहे और उनको ये फिर शी कैमल अच्छी नहीं लगती थी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा था ना इसको हार्म नहीं करना आपने, ठीक है, कि ये अल्लाह की निशानी है। बट व्हाट दे डिड, दे हैमस्ट्रंग हर, ठीक है। इसका मतलब है, आते वर्ड कि उन्होंने कोचे काट डाली उसकी, मतलब है कि उन्होंने उसकी लेग मसल्स को डैमेज कर दिया और उसकी लेग काट दी, ठीक है। जब लेग काट दी जाती है फिर गिर जाता है ना, फिर कैमल गिर जाता है, फिर उसको आप जो मर्जी कर लो, फिर वो आप उससे ना वो उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाती है, आप उससे मुकाबला कर सकते हो फिर। तो इसी तरह उन्होंने उसकी लेग काट दी और फाइनली उसको किल कर दिया। दे आल्सो सेड ब्रिंग टू अस व्हाट यू प्रॉमिसेस इफ यू आर ऑफ द मैसेंजर्स, अगर आप मैसेंजर्स में से होना तो फिर लेके आओ वो जो आप कहते थे कि अल्लाह की पनिशमेंट आ जाएगी, हमने तो अब मार दिया इसको, ठीक है। देन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियलाइज्ड कि अब ये हद क्रॉस करके, एक तो पहले मानी नहीं बात, ऊपर से अल्लाह की जो फाइनल एक निशानी थी ना, मिरेकल समझ लो, और उसको उन्होंने बेकदरी कर दी, उसका उन्होंने ग्रेटफुल नहीं रहे बल्कि उसको उन्होंने मार ही दिया। Then he said, now you enjoy 3 more days in your homes. अब सिर्फ 3 दिन के लिए अपने होम्स में मजा कर लो, उसके बाद Allah's punishment will come. Salih alayhi salam left that land with the believers, with some of the believers who believed, with the hukam of Allah subhanahu wa ta'ala. He left that land, and finally, after 3 days, the wrongdoers were caught with the 2 dangerous things. One is a sayha, that is a thunderous blast. एक जोर की चीख थी, ठीक है, जैसे कड़क होती है बिजली की, या एक जोर की चीख थी, ठीक है, उससे वो हलाक हुए, वो मरे। And there was an earthquake that is called ar-rajfa, okay, in Al-Quran. ar-rajfa, ठीक है, इससे भी वो अफेक्ट हुए। तो क्या हुआ, अर्थक्वेक तो आपको पता है ना, अर्थ शेक करने लगती है, लेकिन वो हल्का सा शेक करना नहीं था, वो बहुत जोर का जलजला था और बहुत जोर की चीख और कड़क थी, ठीक है। और उसने उनको पकड़ लिया और वो ऐसे मर भी गए उस चीख से, बिल्कुल डर के जैसे हो जाता है, और साथ में सब कुछ उनका तबाह हो गया, हाउसेस, थिंग्स एंड एनिमल्स, और वो जिसे कहते हैं वो खुद भी ना, ठीक है, बिल्कुल सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। And they became fallen prone in their homes as if they had never lived there. और वो अपने घरों में ऐसे पड़े थे उल्टे मुंह, ठीक है, जैसे वो कभी वहां बसे ही नहीं थी, ठीक है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला पनिशमेंट से बचाए। अल्लाह ताला said that we saved the believers by mercy from us, के हमने अपनी मर्सी से, अपनी रहमत से बिलीवर्स को बचा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। So the story is end. So what lessons have you learned? Yes, Aram. Obey Allah Ta'ala. Okay, good. And Umama wants to add. कि प्रॉफिट की बात सुननी है। Very good. Prophet की बात जरूर सुननी है। Very good. अरसलान, आप बताना चाह रहे हो? We should not be proud of ourselves. Very good. Very good. We should not be proud of ourselves. ठीक हो गया। Yes, ईमान। जैसे उन्होंने अल्लाह ताला की कैमल को उन्होंने मार दिया था और वो एक निशानी थी, और उन्होंने 2 चीजें गलत की थी, और वो बिलीव नहीं किया उन्होंने जब वो बाहर निकली माउंटेन से, और फिर उन्होंने दूसरी बात नहीं सुनी कि जब प्रॉफिट उन्होंने कहा था कि इसको नहीं हार्म करना, तो उन्होंने उसको मार दिया था। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल उन्होंने अल्लाह की निशानी की बिल्कुल कदर नहीं की और उल्टा उसको मार दिया। वेरी गुड। फाकिया, you can also tell what you have learned. Fear Allah. Yes, fear Allah. Very good. And Hashim? जो अल्लाह ताला की बात नहीं मानता उसको पनिशमेंट मिलती है। बहुत अच्छा लेसन आपने निकाला है हाशिम, कि जो अल्लाह ताला की बात नहीं मानता उसको पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें पनिशमेंट से बचाए, है ना, और हम अल्लाह ताला की बात माने। यस जायशा। We want to obey Allah because Allah is our maker. यस, वेरी गुड। अल्लाह जो है, अल्लाह ने हमें मेक किया, अल्लाह ने हमें क्रिएट किया है। And we want to obey our prophet too.
Very good. Obey Allah as well as obey Prophet. Very good. Very good lesson, Jaisha. Jibran कह रहे हैं and Hashir कह रहे हैं fear Allah. Very good, Jibran and Hashir. जब हमने गलत काम करना होता है हमेशा ही करना होता है अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला से। ओके वेरी गुड। जब गलत काम करना होता है तो सॉरी भी करना होता है। बहुत ही अच्छा लेसन आपने निकाला है। ये अशर था। अशर, जब गलत काम हो जाए तो फिर सॉरी कर लेते हैं। ठीक है, वेरी गुड। जी मुस्तफा। I learned in my lesson that we must not believe the idols and we must believe on Allah Very and good. we must fear Allah. Okay, very good. And these are the lessons that I have learned, and they're more or less the same. Worship only one Allah, fear Allah, and be obedient to Allah and His Rasul. Do good only for Allah's sake. ठीक है, वो कहते थे ना, इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, कि मैं अल्लाह से रिवॉर्ड लेने के लिए करता हूँ. And don't live in this world as if you will live forever. ठीक है, इतना ज्यादा अपनी एनर्जीज और अपना टाइम दुनिया के अंदर इन्वेस्ट ना करें या यूज ना करें कि आप लगने लगे कि आप बस इस दुनिया में ही रहने आए हो एंड यू विल बी लिव हियर फॉरएवर. क्यों, जाना तो सबने है. एंड डोंट बी मटेरियलिस्टिक. इंस्टेड फिर क्या करो, लिव सिंपल लाइफ. ठीक है, ठीक है, नेमते लें, एंजॉय करें, लेकिन फोकस अल्लाह पे होना चाहिए. एंड डोंट फॉरगेट अल्लाह व्हेन यू गेट ब्लेसिंग्स. इंस्टेड be grateful and humble and don't underestimate Allah's power and Allah's punishment. ठीक है, ये नहीं समझना चाहिए कि हम गलत करते रहेंगे तो हम अल्लाह की पनिशमेंट कभी भी नहीं आएगी. ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला हमें पनिशमेंट से बचाएं. आमीन. और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक दें. And do sorry or istighfar, okay, when you do something wrong. And these are the prophets that we alhamdulillah covered. कौन बताएगा इसको देख के, कोई बताना चाहता है? Raise hand. Yes, Maryam. Islam, Hazrat Hudar Islam, Hazrat Saril Islam, and Hazrat Noor Islam. Very good. We covered these 4 prophets. Very good. ठीक है जी. उमामा. आदम अलैहिस्सलाम, Yes. नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम. और आज हमने कौन से प्रॉफिट किए हैं इनमें से? सालेह अलैहिस्सलाम. वेरी गुड. और आदम अलैहिस्सलाम के बाद फिर हमने एक और भी स्टोरी की थी, है ना? याद है ना, हाबील और काबिल की. यस जायशा, यू वांट टू से? Hazrat Adam अलैहिस्सलाम and Hazrat Nuh अलैहिस्सलाम and Habil and Qabil. बहुत अच्छा बताया आपने. जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा. आप सब ने बताया बहुत अच्छा. और पिछले वीक का हमारा होमवर्क क्या था जी? कि आपने विंड, हवा चलती है तो जो दुआ पढ़नी होती है. ठीक है, क्योंकि इन पे जो कौम में आद थी उस पे हवा का ही अजाब आया था ना. सो ये होमवर्क था, आप लोगों ने लिखना था इसकी ट्रांसलेशन. योर होमवर्क्स. दिस इज द वर्क ऑफ ईमान. ये है जी विंड की दुआ. एक दफा मैं बता देती हूँ कि इसका क्या था. कि ये फाकिया का वर्क है. ओ अल्लाह, आई आस्क यू फॉर व्हाट इज गुड इन इट, कि इस हवा के अंदर गुड क्या क्या है और ये क्या क्या गुड रखती है अपने अंदर, और इसके अंदर जो जो फायदे हैं हमें वो दे दें. ठीक है, जिसके लिए ये भेजी गई है, और हमें बचा लें इसके नुकसान से, इसके हार्म से, इसके ईवल से. ठीक है, या जिस ईवल के लिए ये भेजी गई है. नाउ दिस इज द वर्क ऑफ मुस्तफा. मुस्तफा ने इर्द गिर्द कुछ चीजें बनाई हैं, लिखा है, उस पर कलर किया है. बहुत अच्छा, वेरी गुड. एंड देन महरोइन है, उन्होंने बड़ा प्यारा कलर किया है. ठीक है, इसको लिख के माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने. ये अनाबिया का वर्क है. लेफ्ट पे उन्होंने जो है वो यही विंड दुआ की ट्रांसलेशन लिखी है, और ऊपर थोड़ा सा वो रेन और क्लाउड्स शो किए हुए हैं. एंड एट द राइट उन्होंने मुझे पिछली हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हाबील काबिल की स्टोरी का ना माइंड मैप सा जरा बना के भेजा है, वो भी मैंने साथ अटैच कर दिया. दिस इज द वर्क ऑफ जायशा. बहुत ही प्यारा कलर किया जायशा ने. नीचे ग्रास बनाया है और ऊपर जी हवा से लगता है कुछ चीजें जैसे उड़ रही हों, तो साथ लिखा हुआ है. बहुत प्यारा काम है. ये हमना का है, उन्होंने भी ट्रेस किया है. खुद तो वो बहुत ज्यादा नहीं लिख सकती, लेकिन ट्रेस किया है और फिर इसको कलर किया है. एंड दिस इज द वर्क ऑफ हाशिम. ही हैज रिटन द ट्रांसलेशन एंड डन सम ड्राइंग. ठीक है, कारें चल रही हैं और हाउसेस हैं. वेरी गुड वर्क. Now this is the work of Maryam.
and she has done a beautiful work. Maryam, you have done a beautiful work. She has written it in Swedish, and you have done a beautiful work. Bra jobbet. Good job, mashallah. Tack. Varsågod. You're welcome. Now this is the work of Arham, and इन्होंने लिखा है beautiful तरीके से, और उसके बाद flowers बनाए हैं और इसको थोड़ा सा decorate किया है. Very good job, all of you. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Walaikum assalam wa rahmatullah. How are you? What is your name? Saya. Sarah. Okay, so you are Arsalan's sister. Yeah. Nice to have you here. Yeah. Thank you. You're welcome. How are you? How are you? I'm fine, Alhamdulillah. How are you? I am fine. Very good, Alhamdulillah. Now I want कि हम इसकी थोड़ी सी ना आज की अराबिक थोड़ी सी पढ़ लें, थोड़ा ज़बान को हम इसके साथ यूज टू कर लें, और फिर हम इस वीक में यही होमवर्क होगा कि हम इसकी अराबिक को इंशाल्लाह पढ़ेंगे और याद भी करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है? من تغاث ثانية اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. वेरी गुड, बहुत अच्छी दुआ सुनाई है आपने. तो वो जो हमने हाबिल काबिल की स्टोरी में की थी, बहुत अच्छी तकवा की दुआ सुनाई है जी हमने. वेरी गुड जॉब. एंड टुडे वी विल डू दिस दुआ कि जो विन की दुआ थी, ठीक है? हमने इसकी ट्रांसलेशन तो अल्हम्दुलिल्लाह सीख ली है कि ओ अल्लाह गिव अस द गुड इन इट एंड सेव अस फ्रॉम द बैड ऑफ इट, ठीक है? आज हम थोड़ी सी इसकी अरबिक करेंगे. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा फीहा व खैर मा उरसिलत बिह. Oh Allah, I ask you for what is good in this hawa and the good which it contains and the good for that it was sent for. وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. And I seek refuge with you from what is evil in it and what evil it contains and the evil of that what it was sent for. तो आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ना है, पीछे पीछे पढ़ना है, ठीक है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा फीहा व खैर मा उरसिलत बिह. वैसे तो बिही है ना, लेकिन जब हम एंड पे करते हैं तो हम थोड़ा से हा की एक साउंड आती है, स्टॉपिंग साउंड. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा फीहा व खैर मा उरसिलत वअऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फीहा व शर्रि मा उरसिलत बिह. वेरी गुड. कोई खुद से वॉलंटियर करता है इसको पढ़ने के लिए? जी मुस्तफा पढ़ें. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih वेरी गुड. wa a'udhu bika min शर्रिहा min sharriha min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bih. ठीक है, थैंक यू, वेरी गुड. अब आपने कोशिश करना है ना वीक में इसको याद करने की कोशिश करनी है, जितना हो जाए, चाहे पहला फर्स्ट हाफ हो जाए या दोनों हो जाए, ठीक है? वो खैरहा वाला ही हो जाए एटलीस्ट, लेकिन कोशिश करनी है इसको याद करने की, ठीक है? ईमान आप पढ़ लो. Allahumma inni
أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. Very good. Good job. तो एक दफा मैं फिर से ये दुआ पढ़ देती हूँ and then we're gonna leave इंशाअल्लाह. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. आप लोगों ने कोशिश करना है इसको याद करने की जितनी भी हो जाए. Let us end here. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Waalaikumsalam.